everyone, this is CS Harshan Gaikwad from HGPA. I hope everyone is doing great and are safe. Welcome to HGPA's podcast sessions. For the first few sessions, we will record the video also. These podcast sessions is for CA and CMA Foundation students. So in this specific podcast session, I will be covering the most important question that every student has, and that is how to remember Company Act 2013 sections. Okay, so without wasting any further time, let's get this video started. With Company Act 2013 sections for CA and CMA Foundation, I'll be telling you the tricks and tips on how to memorize these sections very easily. But first of all, let me tell you how am I going to do this. I'm going to take you alphabetically on how to remember these sections. Yes, that's right. That means A, B, C and so on. But uske pehle, let me tell you some basic sections which are very easy and which are available in all the acts. For example, section number 1. Now section 1 in all the acts talks about short title, extent and applicability of the act. Section 2 will always talk about definitions. So ये दो section हो गए. And now I will start with section 3 and to section 10. ये अपना first lot रहेगा. Section 3 to section number 10. Okay. Now see, remember, please pay attention. Now remember, I'm going to tell you a story and then we are going to complete these sections. Section 3 talks about formation of a company. That is formation as in what? आपको कौन सा कंपनी फॉर्म करने का है? It should be for lawful business. That is section 3. उसके बाद आप क्या करोगे? सेक्शन 4 में it is contents of memorandum of association. तो जब आप फॉर्मेशन करते हो उसके बाद आपका क्या आने वाला है? आप MOA के कंटेंट लिखोगे. उसके बाद सेक्शन नंबर 5 में कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है. तो आपका 3, 4 और 5 एकदम ऑर्डर में हो गया. 3 था अपना फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, 4 वाज कंटेंट्स ऑफ MOA, उसके बाद 5 था कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. देन सेक्शन 6 talks about that the act will always override your MOA and AOA. अब जितना भी लिखोगे आपके MOA और AOA में एक चीज हमेशा याद रखो कि that is your act is always going to override your MOA and AOA. So 3, 4, 5 and 6 एक लाइन में हो गया. Section 7 talks about incorporation of a company. So the moment you draft your MOA and your AOA, the next step is what? आप कंपनी को incorporate करोगे. Now that is section number 7. Now there is just one unique section which comes in between, and that is section number 8, and that is non-for-profit company. उसके बाद section number 9 talks about effect of registration. जब आपका incorporation certificate मिल जाता है आपको section 7 में, उसके बाद क्या आता है? The effects of registration. मतलब उसके बाद आपका effect चालू होता है incorporation certificate के बाद. That is section 9. Section 10 talks about effect of MOA and AOA. ओके, नाउ आपका MOA ऊपर कवर हुआ है, उसके बाद रजिस्टर करने के बाद उसके इफेक्ट क्या होते हैं? दैट इज रिटन इन सेक्शन नंबर 10. नाउ ये जो लॉट था सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक, ये एकदम बेसिक है. ओके, इसमें टाइप्स ऑफ कंपनी, डेफिनेशंस कुछ भी कवर किया गया नहीं है, बट ये एक ऑर्डर में मैं वापस रिवाइज करूंगा. सेक्शन 3, इफ आई स्टार्ट, सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. द मोमेंट यू फॉर्म अ कंपनी, जस्ट रिवाइज. फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? आपका MOA अब बनता है तो उसमें कंटेंट आएगा, तो उसका सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 4, कंटेंट्स ऑफ MOA. उसके बाद आप AOA लिखोगे, दैट इज सेक्शन नंबर 5, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट द एक्ट विल ऑलवेज ओवरराइड, इट विल ऑलवेज prevail over MOA and your AOA. ये हो गया आपका 3, 4, 5, 6 हो गया. Section 7 talks about incorporation of a company. जब आपका MOA और AOA जब रजिस्टर होता है तो आपको क्या मिलेगा? You will get an incorporation certificate. Next, Section 8 is a unique company. Please remember that thing, that is non-for-profit organizations. Section 9 and 10 talks about effect of registration. मतलब 9 talks about effect of registration and 10 talks about effects of MOA and AOA. इतना चंक हो गया. I hope you're writing also. Now I'll start with the very basic and the most important जो आपके लिए है, and that is section 2 के definitions. ये मैंने alphabetically arrange किए हैं. I'll start with the alphabet A. अभी alphabet A में मैंने 3 sections साइड में रखे हैं. Section 2 subsection 5, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एंड 2 सबसेक्शन 8. ये तीनों की जो सेक्शंस के नाम है वो A से ही चालू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 टॉक्स अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 टॉक्स अबाउट एसोसिएट कंपनी एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 टॉक्स अबाउट ऑथोराइज्ड कैपिटल. अगर एक चीज देखोगे सब A से ही चालू हो रहा है. ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, 6 एंड 2 सबसेक्शन 8. ओके, नाउ ये A का था. Now let us go to alphabet B, that the next. इसमें एक ही सेक्शन लिया है मैंने, and that is 2 subsection 10.
उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आपको डिफिकल्टी जा रहा है ये याद रखने के लिए, रिमेंबर वन थिंग, अपन हमेशा बोलते हैं कि बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है, 10th का एग्जाम नजदीक आ रहा है, 10th मतलब बोर्ड, और उसका ही सेक्शन क्या है, 2 सबसेक्शन 10 है। ओके, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द बोर्ड का सेक्शन, दैट इज 2 सबसेक्शन 10। नेक्स्ट अल्फाबेट इज सी। इसमें मैं 4 सेक्शन साइड में रखे, 2 सबसेक्शन 15, 2 सबसेक्शन 20, 2 सबसेक्शन 21 एंड 2 सबसेक्शन 22। 2 सबसेक्शन 15 बोलता है कॉल्ड अप कैपिटल, 2 subsection 20 is the definition of company C, and 2 subsection 21 is company limited by guarantee, and 2 subsection 22 is company limited by shares. Now if I talk about 2 subsection 21, let me tell you one thing, how to remember this section. So when you're mature enough, when you become 21 years of age, you have a responsibility, you have a guarantee towards your this parents that to tell everything what is happening with you. ओके, सो आप एक गारंटी देते हो आपके पेरेंट्स को दैट एवरीथिंग आई विल टेल यू, दैट इज अ गारंटी। 2 सबसेक्शन 21 वैसे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। एक एज आपका और बढ़ गया, यू बिकम 22 years of age, नाउ योर पेरेंट्स टेल बॉस प्लीज शेयर मी एवरीथिंग व्हाट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो 21 को समझ में आ रहा है क्या? 2 सबसेक्शन 21 इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आप गारंटी देते हो, एंड 2 सबसेक्शन 22 इज यू शेयर, दैट मींस व्हाट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, तो ये 4 सेक्शन मैंने अल्फाबेट सी में लिखे। नेक्स्ट इज जी अल्फाबेट। इसमें एक ही कंपनी है, दैट इज 2 सबसेक्शन 45, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। अब ये कैसे याद रखना है गवर्नमेंट कंपनी? हम हमेशा क्या बोलते रहते हैं दैट गवर्नमेंट उसका काम ठीक तरह से नहीं करती है, दे डू नॉट परफॉर्म द एक्टिविटीज सो फास्ट ऑल्सो। अपन क्या करते हैं, 4-5 दिन लगता है उनको काम करने में। उसका सेक्शन भी वैसा ही है। कैसा सेक्शन है उसका? 2 सबसेक्शन 45, 4-5 दिनों में, मतलब ही क्या है उसका, गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, चलो ओके। नाउ नेक्स्ट इज 1 स्टेप अहेड, एक ही उसका आगे का सेक्शन, दैट इज अल्फाबेट H, 2 सबसेक्शन 46, और ये क्या है? इट इज होल्डिंग कंपनी। नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग? सी 245 यू ऑलरेडी नो, इट इज गवर्नमेंट कंपनी। अभी पूरे इंडिया में होल्ड किसका है? इट इज गवर्नमेंट का। तो उसके बाद ही कौन सा सेक्शन है? इट इज होल्डिंग कंपनी। तो यू कैन मेमोराइज इट दैट वे। नेक्स्ट अल्फाबेट इज O, एक ही सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, 2 सबसेक्शन 62, दैट इज OPC कंपनी। Let us assume there's one person, a senior citizen, after retirement life, he wants to incorporate a company, he wants to cultivate trees, he wants to plant trees, so he incorporates a plantation tree company. Now OPC stands for one person company, so when he becomes 62 years of age, he goes and incorporates a OPC company, और वो क्या लगा था? पेड़ पौधे लगा था। इसका मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल। जो नेक्स्ट सेक्शन है 2 सबसेक्शन 64, और जो कि अल्फाबेट ई में है, that talks about paid up share capital। तो आपके 2 सेक्शन हो गया, 2 अल्फाबेट हो गया। अल्फाबेट O में क्या था? 2 सबसेक्शन 62, दैट इज 1 पर्सन कंपनी, और वही पेड़ पौधे लगाता है, मतलब क्या है? 2 सबसेक्शन 64 में पेड अप शेयर कैपिटल है। ओके, चलो वी गो टू नेक्स्ट अल्फाबेट, अल्फाबेट P, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 4 सेक्शन सिलेक्ट किए मैंने, 2 सबसेक्शन 68, 2 सबसेक्शन 69, 2 subsection 70 and 2 subsection 71. Now see, remember one thing, what exactly is this? 2 subsection 68 talks about private company. Let us assume आपने private company खोला, incorporate किया, फिर आपके प्रमोटर ने, मतलब प्रमोटर का सेक्शन नेक्स्ट आ गया, दैट इज 2 सबसेक्शन 69। प्रमोटर ने क्या किया? जाके प्रोस्पेक्टस इशू किया। प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कौन सा है? 2 सबसेक्शन 70 है, और प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद उसने पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, दैट इज 2 सबसेक्शन 71। सो इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस सेक्शन, इट इज इन लाइन। 2 सबसेक्शन 68, 2 सबसेक्शन 69, 2 सबसेक्शन 70 एंड 2 सबसेक्शन 71। एक स्टोरी ही है। पहले प्राइवेट कंपनी, प्रमोटर है, प्रमोटर क्या करता है? प्रोस्पेक्टस इशू करता है, और प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद आपका पब्लिक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट लेटर इज लेटर S। इसमें आप टेकिंग 4 सेक्शंस, स्टार्टिंग with 2 सबसेक्शन 84, 2 सबसेक्शन 85, 2 subsection 86 and 2 subsection 87. Now what exactly are these? First 2 subsection 84, इसका है share, SHARE, that is share। इसका मतलब अभी for example let us assume one thing that there was 8 pieces of share and वो 4 persons में बांट दिया हम लोगों ने। उसी 4 persons ने जाके क्या किया? स्मॉल कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। स्मॉल कंपनी के बाद उन्होंने सब्सक्राइब कैपिटल को बुलाया, एंड लास्ट इज उन्होंने सब्सिडरी कंपनी को फॉर्म किया। तो आप एक
एक लाइन में देखो, टू सबसेक्शन 84 से चालू हो रहा है, शेयर 85 इज स्मॉल कंपनी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू सबसेक्शन 86 इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड टू सबसेक्शन 87 इज योर सब्सिडरी कंपनी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस, आई होप यू राइटिंग इट ऑल्सो. ओके, चलो अभी नेक्स्ट करते हैं. एंड सी रिमेंबर वन थिंग, एक ही सेक्शन बचा है. यस, दैट इज राइट, दैट इज यू. लेटर यू में मैंने एक सेक्शन को पकड़ा है, दैट इज टू सबसेक्शन 92. क्या है? अनलिमिटेड कंपनी. यू नो, दिस इज वन एड विच आई सॉ रिसेंटली ऑन सम पोस्ट, दैट इज कि ₹92 दे दो और जितना भी आपको खाने का यहाँ पे खा जाओ. इसका मतलब कि अनलिमिटेड 92 रुपीज दो और अनलिमिटेड खाओ. अभी इसका सेक्शन क्या है? टू सबसेक्शन 92 अनलिमिटेड कंपनी. खत्म हो गया. If you just notice, you have wrapped up all the companies. Okay, just for your information, सब companies wrap up हुए हैं. This is 3 companies which are yet to be wrapped up. वो different sections है, वो 2 subsection में नहीं आते. इन सब का 2 सबसेक्शन में आता है, डेफिनेशंस में आते हैं. बट देयर इज 3 कंपनीज विच आर डिफरेंट. कौन से ये? चलो, सेक्शन 406 इसमें अमेंडमेंट हुआ था इस बार, दैट इज निधि कंपनी. उसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं. सेक्शन 447 टॉक्स अबाउट फ्रॉड. नाउ फ्रॉड, दिस सेक्शन 447 इज प्रेजेंट थ्रू आउट योर सीए करियर, फाउंडेशन, इंटर एंड योर फाइनल्स. एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ योर सीए फाउंडेशन सिलेबस इज सेक्शन 445 दैट टॉक्स अबाउट डॉर्मेंट कंपनी. ये सब सेक्शन जितने भी लिए मैंने अभी विद द टिक्स एंड ट्रिप्स, ओके, that will help you in remembering, and you can also quote this in your examinations. Okay, I hope you have liked this session. I hope you have written it also. Okay, so more sessions will be coming out on the same. Okay, please do watch and subscribe our channel, and please don't forget to hit that bell icon for more of these podcast sessions. Thank you so much.